हेलो बच्चों, आई होप आपका पैटेक्स का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। आज हम लेके आए हैं पैटेक्स का 20 अक्टूबर का सॉल्यूशन ऑफ साइंस। लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड। सो द आंसर इज एम्पलीट्यूड, ए। Next, a big wooden box is being pushed on the ground from east to west direction. The force of friction due to ground will act on this box towards north direction, south direction, east direction or west direction. So students, अगर box है and it is sliding फ्रॉम वन डायरेक्शन टूवर्ड्स अनदर डायरेक्शन, सो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा। सो लेट्स सी कि जो बॉक्स है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पुश हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन से आएगा? वेस्ट डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। सो आंसर इज वेस्ट डायरेक्शन। साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन इज Alexander Fleming, Louis Pasteur, John Mendel, Edward Jenner. So the answer is Louis Pasteur. Next, coal tar contain about 300 substance, 400 substance, 200 substance or 100 substance. So the answer is C, that is 200 substance. Like fuel, the sun also provide heat and light. The process taking place in the sun is called combustion, nuclear fusion, burning or nuclear fission. So answer is B, that is nuclear fission. Proton-proton fission होता है. When coal burns in air, then what will be formed? Carbon dioxide is formed, sulfur dioxide is formed, carbon monoxide is formed और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। सो इसका आंसर है ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। वाटर इज नेचुरल सब्सटेंस, मैन मेड सब्सटेंस, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज ए, दैट इज नेचुरल सब्सटेंस। Last MCQ is combine are used for sowing of seeds, harvesting the crop, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ। सो जो कंबाइन है वो दो चीज़ें साथ में करता है, दैट इज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट, वाई नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉसिल फ्यूल। सो स्टूडेंट, जो नेचुरल गैस है दैट इज वन काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें नेचुरल गैस मिलती है। नाउ बिकॉज इट इज cleaner fuel and it also produce very less emission, that is why it is very important fossil fuels. Next, explain why sliding friction is less than the static friction. So students, what happened, suppose this is the surface, each and every surface has some kind of irregularities. Okay, so friction कैसे act करता है कि जब भी कोई भी object is sliding on the surface, so there is the interlocking of the surface. यहाँ पे interlocking हो जाता है, and that's how this friction acts. Now when the object is sliding, okay, so what happened, the time of interlocking of the surface is less. Okay, what is the reason that time of interlocking of surface is less? That is why sliding friction is lesser than the static friction. Okay, so friction depends on interlocking of the surface
And during sliding, what is happening? The timing of interlocking is getting less. Thus, sliding friction is less than static friction. Next question is, in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 180,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. So, what is the total fuel (4.5 kg of fuel) and what is the total heat produced? The total heat produced is, now we have to find the calorific value. So what is the calorific value? That is heat produced by 1 kg of fuel, that is its calorific value. So क्या हो जाएगा? 180,000 upon 4.5, that is going to be 40,000 kilojoule. Okay, so calorific value मतलब heat produced by 1 kg of fuel. So we will divide 180,000 by 4.5. So the answer is going to be 40,000. Next, which zone of flame is used by goldsmith for melting gold and silver? So students, here we have to understand the flames. This is the outer flame and this is the middle. This is the middle zone. This is the outer zone flame. So what happened? Here the partial combustion is taking place. Because there is no sufficient oxygen is here, but outer zone has the sufficient oxygen. So this zone is the hottest part. This is the hottest part or hottest zone of the flame. So definitely goldsmith is going to use the hottest zone of the flame. Hottest zone for melting gold and silver, because it is the outer zone. Here complete combustion will take place because of the sufficient oxygen. Next, what is virus? Name some common disease in human caused by virus. So student, virus is microorganism which can be seen by an electron microscope. So student, there are different types of microorganisms, bacteria, fungi, algae, but virus is different from all of them. First of thing, that it is very small and it is
it can be seen only through the electron microscope. And second thing is that virus can only be multiply in host cell. If it is outside the host cell, it is going to be inactive. Okay, and some common diseases which is caused by viruses are HIV, polio, pox, that is smallpox, flu. So these are the some diseases which are caused by the virus. What is crop rotation? Why is it important? So students, crop rotation हम कब करते हैं? When whole year, पूरे साल अगर एक ही तरह का crop अगर हम उगाएंगे, so what will happen? Whole year that particular crop will take the particular nutrient from the soil and soil will become deficient in that particular nutrient. So sometimes farmers क्या करते हैं? In between the seasons, between the seasons, what they grow? They grow leguminous plant. They grow leguminous plant. Now ये जो plant होता है leguminous plant, they contain the rhizobium bacteria in their root nodules. Okay, so rhizobium bacteria क्या करता है? Rhizobium bacteria in return it is going to fix nitrogen. Okay, so जो भी deficiency है that is going to be fulfilled with the help of rhizobium bacteria. Nitrogen की डेफिशिएंसी वो खत्म कर देगा. सो क्या होगा? जो सॉइल है वो इम्प्रूव हो जाएगा. सो बेसिकली व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियली प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम प्लॉट टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ. सीक्वेंशियली मीन्स पहले हमने एक उगाया, उसके बाद हमने लेग्यूमिनस प्लांट उगाया, उसके बाद हमने कोई और क्रॉप उगाया. क्योंकि अगर पूरे साल अगर हम लोग एक ही क्रॉप उगाएंगे तो व्हाट विल हैपन? सॉइल इज naturally will get deficient in some different type of nutrients और ultimately soil की health खराब हो जाएगी. So हम crop rotation क्यों कर रहे हैं? To improve the soil health and soil nutrients. Next question. Give reasons. Water is not used to control fire involving electrical equipments. So what will happen? Water क्या है? Water is good conductor of electricity. तो क्या होगा? Water good conductor of electricity है. अगर इलेक्ट्रिसिटी से ही आग लगी है and if we put water on that particular fire, it may happen that electricity can cause more accidents over there. So we should not use water when fire is involved during the electrical equipment because water is good conductor of electricity. Second, LPG is a better domestic fuel than wood because LPG is easy to transport and there is no smoke. It is cleaner fuel. And left no residue. That is why LPG is better than domestic fuel than wood. Third, paper by itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. So students, when a substance catches the fire, it has to reach its ignition temperature. It has to reach its ignition temperature. So
here what is when paper is catching fire very easily, it means जो paper का ignition temperature है that is very less compared to the aluminum pipe. इसीलिए when we burn paper itself it catches fire very easily, but aluminum का जो ignition temperature है that is higher. That is why it does not catch the fire. So what is the reason behind this? That ignition temperature of paper is less than aluminum pipe. Okay. Next question. Draw a label diagram of candle flame. So we have to draw the candle. This is wick and this is the flame. Now here this is the outer zone, this is the middle zone and this is the inner zone. Here you have to show that in outer zone this is the hottest part. Why? Because of sufficient oxygen. Also here complete combustion is taking place. Here this zone is middle zone. Here the heat is moderate because of insufficient oxygen, and this is the darker zone because there is no oxygen is available. So in this diagram you have to explain the zones of the flame. Why does sharp knife cut objects more effectively than a blunt knife? So students, before this let us understand what is the pressure. Pressure is equal to force upon area. Now pressure is inversely proportional to the area, means जितना area कम होगा pressure उतना ज़्यादा होगा. And what is the use of knife? We have to cut the vegetable from the knife, so it has to be very sharp. So when knife is sharp, the area is less. Area less है. Area is inversely proportional to pressure. So what will happen? If area is less, then pressure is going to be more. The vegetable will cut very easily. Area is less, pressure is more. So vegetable will get easily cut. But in blunt knife, what will happen? Area is going to be more, so pressure is going to be less. Thus it would not work effectively. Next question. What is refining? Why does petroleum require the refining? So student, refining means to clear the impurities. Refining is clearing the, or you can say separate the impurities
and getting the useful substance. Now what is the petroleum? It is the raw crude oil. Now from this crude oil we have to separate the important substance like petrol, diesel, kerosene, natural gas. So these are the important substances which we want from this crude oil. So that is why refining is very important during the petroleum. Next, write a paragraph in your own words on each of the following. So first one is preparation of the soil. So it is the first step in the agriculture practices in which we do the loosening and turning of soil. It is also known as plowing, which is plowing. We also level the soil. Okay, leveling the soil with the help of leveler. This is the first step of the agricultural practice. We are loosening and turning of the soil, and when the crumbs of the soil is on the field, what we do, we just level this crumbs of the soil with the help of leveler. So first one is done. Next is sowing. Sowing is planting the seeds in the fields. This can be done with the seed drill, question is continue on the next slide. Next is weeding. Weeding. Now first you have to understand about the weeds. So weeds are the unwanted plants in the field which is going to take the nutrition of the crops. So weeds are unwanted plants in the field. So what is weeding? Removal of this unwanted plants. Weeding is removal of unwanted plants. Weeding can be done by using weedicides. Example 2,4-D. This is the chemical which is used as a weedicides to remove the weeds from the field. And the last one is threshing. It is the separation of grains from the stalk. Next question. What are the effects of application of force on an object? Explain. यहाँ पे हमें क्या बताना है? फोर्स के इफेक्ट्स बताने हैं, दैट फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है. सो फर्स्ट, it can change the shape, can
change the direction, change the speed, also force can make moving object steady and steady object in motion. Let's see the example for all these things. It can change the shape. The example is making dough and chapati, right? We can change the shape. First dough is round and then we roll the chapati, then it is flat. So this is the example of changing the shape. Changing the direction, playing cricket, or you can say hitting ball also hitting the football. This is the example of changing the direction. Change the speed, bicycle will be in more speed by pedaling, right? If cycle is moving very slowly and if you will pedaling it very hard, what will happen? The speed will get increased, right? Force can make moving object steady or steady object in motion. Kicking the football, kicking the football, and same stopping the football. So these are the some examples and the effect of force. Next question is, what are the antibiotics? What precaution must be taken while taking antibiotics? So students, antibiotics are chemical which are released by certain microorganism which can kill or inhibit the growth of other microorganism. And these chemicals are used as a medicine known as antibiotic. So what had happened, how the antibiotic was discovered, that once the experiment was going on and there was the growth of bacteria in the petri dish. So what they saw, that there is a contamination of some fungus in the plate. So the area near the colony of fungus, there were no single bacterial colony was found. So the scientists discovered that
fungus is releasing some kind of chemical which is inhibiting the growth of bacteria. So this discovery later on invented the first antibiotic, which is penicillin. Now next question is, what precaution must be taken while taking the antibiotics? Do not take antibiotic without doctor prescription. Complete the dose of antibiotic and do not skip the dose. So these are some precautions, like you should not take the antibiotic without the prescription of doctor. It could be harmful, or it may not affect afterwards. We should complete the dose of antibiotic. ऐसा नहीं है कि भाई I'm taking 2 tablets today and then I'm okay, then I'll just leave the course. No, we have to complete the course. And last one, we should not skip any of the doses. Write some important uses of various constituent of petrol. Petroleum, what we get from the petroleum, let's list out here first. Petrol, diesel, let's say natural gas, इसमें आ जाएगा CNG, LPG, kerosene, lubricating oil. So petrol used in automobiles, CNG once again automobiles, LPG domestic fuel for cooking, kerosene jet fuels, lubricating oil used as lubricants. So students, I hope you get all the solution of all the questions. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपको दिया है टू गेट द प्रोडक्ट एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको वी शुड मल्टीप्लाई, आपको दिया है -8/15 + 1/2 बाय। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रोडक्ट में चाहिए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब आपको कितना प्रोडक्ट चाहिए? 1 अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। क्या दिया है बेटा? ये दिया है -8/15 और प्लस दिया है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 × 2 = 16 प्लस 15 1 = 15/15 2 = 30। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू है -1/30। ठीक है, आपके पास अभी क्या है? -1/30। और आपको प्रोडक्ट में जो आंसर है प्रोडक्ट करने के बाद वो क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? माइनस को प्लस करने के लिए माइनस रखोगे और 30 का कट करने के लिए 30 रखोगे। तो आपका आंसर क्या है? -30 है। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि कौन सी चॉइस आपको -30 दे रही है। पहला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/30। तो -1/30 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो कितना होता है? -30। ठीक है, तो ये ट्रू है।
एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इंटू 5, तो 6 5 या 30 होता है और 30 का एडिटिव इनवर्स -30, तो ये भी ट्रू है। फिर नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 1/30, तो 1/30 का रेसिप्रोकल 30 होगा और उसका नेगेटिव मतलब माइनस होगा। तो आपको जो तीनों चॉइस है वो -30 आंसर दे रही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बोला है द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द रैशनल्स। ठीक है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ रैशनल्स, जो रैशनल नंबर सबसे बड़ा है और जो रैशनल नंबर सबसे छोटा है, आपको क्या करना है, उनका सम करना है। तो पहले तो आपको इन सबको इक्वल सेम डिनोमिनेटर करना पड़ेगा इन सब का, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स है आपके पास? आपके पास है 3/5, ठीक है, दूसरा है 2/3, तीसरा है 5/8 और चौथा है 3/4। अब मुझे क्या करना है, अगर ये पता लगाना है कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, तो मुझे इन सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, तो मुझे सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँगा। कौन कौन से नंबर्स है बेटा? तो आपके पास नंबर्स है 5 3 8 4, 5 3 8 4। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो 5 1 ये एज इट इज़, ठीक है, फिर 3 1 तो ये भी एज इट इज़, फिर मैं 2 से लेता हूँ तो 2 4 8, 2 2 4, अगेन मैं 2 से लेता हूँ तो 2 2 4, 2 1 2, और अगेन मैं 2 से लेता हूँ तो ये, तो आपका एलसीएम आएगा, आपका एलसीएम आएगा, क्या आएगा आपका एलसीएम? 5 3 15, 2 30, 2 60, 2 120। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया बेटा? 120। तो आपको क्या करना है, सबका जो बेस है वो 120 करना है। तो अगर मैं सबका बेस 120 करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 120 करने के लिए मुझे ऊपर नीचे 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 120 करने के लिए मुझे ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मुझे 120 करना है बेस तो मुझे ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे अगर बेस 120 करना है तो ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके जो नंबर्स है वो हो जाएंगे 24 3 72, 25 5 20, 100, 4 5 20 मतलब 120। ठीक है, ये हो जाएगा 40 2 80 बाई 4 3 12 120, फिर 15 5 75 बाई 18 5 120, और 33 90 बाई 34 120। अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 72 बाई 120 मतलब 3/5, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90 बाई 120 मतलब 3/4। आपको क्या करना है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सम मतलब एडिशन, तो आपको करना है 3/5 और सबसे छोटा और सबसे बड़ा 3/4 का एडिशन। तो ये होगा 4 3 12 प्लस 5 3 15 अपॉन 5 4 20। तो आपका आंसर आएगा 12 और 15 27/20। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 27/20। कौन सी चॉइस है बेटा, डी चॉइस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको बोला है थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है बेटा आपको, तो आपको बोला है 3p/5 प्लस 5/3 अगर इक्वल टू 0 है तो 3p + 7 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये होगा 3p/5 प्लस
5/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप 5/3 को ये साइड पे ले लो, तो आपको मिलेगा 3p/5 इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3p की ही वैल्यू यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे 3p की ही वैल्यू ढूंढ देता हूँ। तो यहाँ पे ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3p की वैल्यू आ जाएगी 5 5 25 -25/3। ये आपके 3p की वैल्यू है, इसको हम आगे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपको किसकी वैल्यू पूछी है, 3p + 7। तो 3p की वैल्यू कितनी है, -25/3 + 7, 7 3 ज़ा 21, तो -25 + 7 3 ज़ा 21/3, -25 + 21 -4/3। कौन सी चॉइस है बेटा, -4/3, सी नंबर की चॉइस है। ठीक है, एकदम इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 72। तो द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम है 72। तो अगर आपने पहले इवन नंबर को x लिया तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट इवन नंबर होगा x + 2 और उसके बाद वाला होगा उससे 2 ज़्यादा x + 4। अब आपको सम बोला है, सम यानी कि एडिशन। तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एडिशन है वो कितना है, 72। अगर आप इसको ऐड करो, x 3x + 2 + 4 6 इज इक्वल टू 72। तो 3x इज इक्वल टू 72 - 6 66। तो x इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़ा एंड 2 ज़ा। तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, आपको मिलेगा x इक्वल टू 22। मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर है x वो कितना है, 22। ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा था, उसमें x + 2 ज़्यादा, यानी सेकेंड नंबर जो है वो है 24 और थर्ड नंबर है x + 4। तो बिगेस्ट नंबर है x + 4 दैट इज़ 22 + 4, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है बेटा वो क्या है, 26। तो द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 26। कौन सी चॉइस है, बी चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बोला है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, आपको पता होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके होते हैं n × n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स की फॉर्मूला है n × n-3/2। अब n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है उस पॉलीगॉन की। तो डेकागॉन में कितनी साइड्स होती है, 10 साइड्स। तो इसके लिए n क्या होगा, 10 होगा। तो n की जगह 10 10 - 3 7 डिवाइड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, तो 7 5 ज़ा 35। कितने डायगोनल्स होंगे बेटा, 35। एकदम इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, while constructing a histogram dash are taken along the x axis। तो आपको पता है हम x axis पे क्या लेते हैं, क्लास इंटरवल्स लेते हैं, और y axis पे क्या लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से किसका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आपको पता हो तो 1 का स्क्वायर पीछे क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर तो पीछे 4 आता है। 3 का स्क्वायर तो पीछे 9 आता है। 4 के स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट होता है वो 6 होता है। 5 के स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट होता है वो 5 होता है। अगेन 6 के स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट होता है वो 6 होता है। 7 के स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट होता है वो 9 होता है। अगेन 8 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट होता है लास्ट डिजिट वो 4 होता है। ठीक है, 9 के स्क्वायर में अगेन वो 1 होता है, और पीछे अगर 0 है तो 0 के स्क्वायर में पीछे 0 होता है। तो कभी भी जब भी आप स्क्वायर करते हो या तो यूनिट डिजिट 1 होगा, या यूनिट डिजिट 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा। देखो 2, तो 2 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होता है।
7 वो भी कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होता है, एंड 8 कभी भी किसी के भी यूनिट डिजिट में नहीं आता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें से कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो कि आप इजीली एक यूनिट डिजिट देख के पता कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर के फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। आपको इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्यूब रूट मतलब थर्ड रूट होता है, तो आपको फाइंड करना है थर्ड रूट ऑफ 3.375। तो अगर मैं डेसिमल निकालूं तो टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड, तो ये होगा 3375 अपॉन 1000 और इनटू 1 अपॉन नीचे क्या है 1728। मुझे क्या चाहिए, इसका क्यूब रूट चाहिए। तो अगर आपको क्यूब्स याद है 15 तक के भी अगर आपको क्यूब्स याद है बेटा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो 15 का क्यूब है एंड ये जो है वो 12 का क्यूब है। जनरली 15 तक याद रखते हैं, तो ये 15 का क्यूब है। अगर आपको नहीं याद है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके इजीली फाइंड कर सकते हो, बट अभी याद है तो ये 15 का क्यूब है। तो जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो, या पहले ही मैं आपको शो कर देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ ये किसका क्यूब है 15 का क्यूब। ठीक है, 1000 किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब। ठीक है, 1 किसका होता है 1 का क्यूब और 1728 है 12 का क्यूब। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो सभी क्यूब्स कैंसिल आउट होके खाली नंबर्स बचेंगे। तो ये होगा 15 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 12। 3 4 12, 3 5 15 एंड 5 2 10। तो आपके पास नीचे बचेगा 2 और 4, तो 1 अपॉन 2 4 8। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1 अपॉन 8। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये तो माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो बट ऑब्वियस ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, और अगर हम चाहे तो सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो आपको इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप तीनों का एलसीएम लेते हो, कौन कौन से नंबर्स है 6, 15 और 24। तो 3 2 6, 3 5 15 एंड 3 8 24, 2 1 2 एंड 2 4 8, 5 1 5 4। अब दोनों ही 1 बचे हैं, तो 2 या 4 डायरेक्टली भी कर सकते थे आप 2। ठीक है, अभी अगर आप एलसीएम देखोगे तो क्या आएगा 2 2 4, 4 5 20, 20 2 40, 3 120। तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 120। तो आप सबका पहले बेस सेम कर सकते हो। अगर आप बेस सेम करते हो तो ये होगा 1/6 इंटू ऊपर नीचे 20 दे दो, तो ये होगा 20 1 20, 2 6 12, तो 120। ठीक है, दूसरा -3/15। अगर आपको 120 करना है बेटा तो 15 8 120 होता है, तो ऊपर नीचे आपको 8 देना पड़ेगा। तो ये होगा -24/120। और अगर आपको 14/24 है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी 120 करना है तो ऊपर नीचे 24 5 होता है, तो ये होगा 14 5 70, 24 5 120। तो अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो ये नेगेटिव है, तो ये तो सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर कौन आएगा बेटा -3/15। ठीक है, सेकंड, अब ये क्या है 1/6 मतलब 20/160, और ये 120 और ये है 70/120। तो 20/120 छोटा है, 70/120 बड़ा है। तो असेंडिंग मतलब पहले आपको छोटा लिखना है, तो इसके बाद आएगा 1/6 और थर्ड आएगा 14/24। तो ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले -3/15, 1/6 और -14/24। ठीक है,
सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 ज़ा 21, तो -7 3 ज़ा 21, तो 2.1 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49 इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा 16.8 इंटू 5, दैट इज़ आप देखोगे तो 168 इंटू 5 कर सकते हो आप। 8 5 ज़ा 40, ठीक है, 6 5 ज़ा 30 और 4 34, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, तो 84.0 आएगा। अगर इधर पॉइंट होगा तो आप 84 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू 84 प्लस 16.8 इंटू एक्स, 16.8 एक्स, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप इसको यहाँ पे ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, एंड इसको इस साइड ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 16.8 एक्स प्लस 2.1 एक्स इज़ इक्वल टू, इधर क्या था पहले से 49 था, अब ये इधर आएगा तो माइनस होगा तो 84 हो जाएगा। 16.8 उसमें 2.1 प्लस होगा तो 17.8, 18.8, 18.9, तो ये होगा 18.9 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, अगर आप 49 में से 84 माइनस करते हो तो 59, 69, 79, तो 30 और 5, तो ये आ जाएगा -35, ठीक है। अभी आप x चाहते हो तो x की वैल्यू होगी -35 अपॉन 18.9। अब आपको यहाँ से डेसिमल निकालना है, तो आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो x हो जाएगा -350 अपॉन 189। ये 7 से ऊपर नीचे कट हो रहा है, 7 5 ज़ा 35, 0 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, तो आपको मिलेगा x इज़ इक्वल टू -50/27। आपको जो x की वैल्यू है वो मिल रही है -50/27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बोला है फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको क्या करने हैं, पैरेललोग्राम के एंगल्स ढूंढने हैं। और आगे क्या बोला है, हुज एडजेसेंट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, जिसके एडजेसेंट एंगल्स यानी कि बाजू बाजू वाले एंगल्स का क्या रेशियो है, 5:7। तो पहले पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स बोला है बेटा आपको, तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू बाजू के एंगल्स, तो इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो अगर आप एडजेसेंट एंगल्स देखना चाहते हो तो आप एडजेसेंट एंगल्स में ये दोनों एंगल्स को ले सकते हो, जैसे ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट है, आप इन दोनों को भी ले सकते हो, आप BC को भी ले सकते हो, आप CD को भी ले सकते हो, या आप AD को भी ले सकते हो, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से रेशियो में है, 5:7। तो मैं रेशियोज को x ले लेता हूँ, लेट द रेशियोज बी x, ठीक है। मैंने क्या किया है बेटा, मैंने रेशियोज को x ले लिया है। तो अगर मैंने रेशियोज को x ले लिया तो मेरा ये a को मैं ले लेता हूँ 5x, और मेरा जो b है वो हो जाएगा 7x, ठीक है। तो a की जगह 5x और b की जगह 7x। बट यहाँ पे आपको पता होगा ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, तो ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम होगा 180। तो नाउ 5x प्लस 7x इज इक्वल टू, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्या रीज़न है, तो ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 7 और 5 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 15 डिग्री। आपको x की वैल्यू मिल गई 15 डिग्री। तो अब आपके एंगल्स क्या है, आपके एंगल्स है a इज इक्वल टू 5x, यानी कि 5 इंटू 15 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई आपको 75 डिग्री।
अगर आप b चाहते हो कि आपकी b की वैल्यू क्या है, तो आपका b कितना है बेटा, b है आपका 7x, यानी कि 7 इंटू 15, 15 7 ज़ा 105 डिग्री। तो आपको आपके एंगल बी की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 105x। तो आपके जो एडजेसेंट एंगल्स है वो हो जाएंगे 75 डिग्री और 105 डिग्री। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर्ड कार्ड ऑन चूजिंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स हैविंग नंबर्स 1 to 50। अगर आपके पास 1 2 3 4 ऐसे 50 नंबर तक के अलग अलग, एक कार्ड पे एक ही नंबर है, तो 50 नंबर्स तक के कार्ड्स है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक रैंडमली नंबर वाला कार्ड उठाओ और वो क्या आए, प्राइम नंबर्ड कार्ड आए। ठीक है, तो आपको 1 से 50 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिख देने, वो आपके फेवरेबल आउटकम होंगे। तो आपको फेवरेबल कौन होंगे, तो आपके फेवरेबल आउटकम होंगे, शुरू करते हैं। पहला 2 प्राइम नंबर, 3 4 नहीं होता, 5 6 नहीं होता, 7 8 9 10 नहीं होता, 11 फिर 13, उसके बाद 14 15 16 नहीं आएगा, 17 फिर 18 नहीं आएगा, 19 20 21 22 नहीं आएगा, 23 24 25 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, सीधा 29 फिर 31, नेक्स्ट 33 नहीं, 33 नहीं आएगा अगेन, फिर आएगा 37, उसके बाद 39 भी नहीं आएगा, 40 नहीं, 41 आएगा, फिर 43 आएगा एंड उसके बाद आएगा 47। ठीक है, तो एक बार काउंट कर लेते कितने हो रहे हैं। तो ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो रहे हैं बेटा, 15। और टोटल कितने हैं, तो 1 से लेके 15 तक के नंबर है, तो टोटल 50 आउटकम्स है। ठीक है, टोटल आपके पास है 50 आउटकम्स। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो हो जाएगी, फेवरेबल कितने हैं 15 और टोटल कितने हैं 50। आप चाहो तो 5 से कट करो, 5 3 ज़ा 5 10 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ √784 एंड √441। तो ये आपको याद होगा, 784 ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 28, तो 28 के स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई बाय ये होता है 21 का स्क्वायर का रूट, तो ये होगा 28 और इनटू ये होगा 21। तो आपको दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो अगर आप प्रोडक्ट करते हो 28 इंटू 21, 8 2 0 8 2 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5। ठीक है, सॉरी 1 8 2 2 8 ज़ार 16 एंड 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5। तो ये 8 और ये भी 5। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 588। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7 by 44। इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर, तो लेट द नंबर बी x, लेट नंबर बी x। मैंने क्या किया, नंबर को x ले लिया। तो इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर, तो वो होगा 3/5x। एक्सीड्स मतलब बड़ा है, कि किससे बड़ा है, एक्सीड्स इट्स 2/7 by 44, मतलब ये इसके 2/7 से भी 44 बड़ा है। तो अगर आप 2/7 में 44 ऐड कर दो, तो ये क्या है, इसके 2/7 से 44 बड़ा है। ठीक है, तो 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स मतलब इक्वल टू इट्स 2/7 by 44। तो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द नंबर, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लाके पहले माइनस करूँगा, तो ये मिलेगा 3/5x माइनस 2/7x इज़ इक्वल टू
44, ठीक है। x कॉमन तो अंदर आएगा 3/5 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 44, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा 7 3 21, तो x इंटू 7 3 21 माइनस 5 2 10 अपॉन 7 5 35 इज इक्वल टू 44। x इंटू ये आ जाएगा 11/35 इज इक्वल टू 44। आप 11 से कट कर सकते हो, 11 4 44, ठीक है। तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 35 इंटू 4, ठीक है। 35 का 70 और 140, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा। तो आपका नंबर कौन सा है? जो आपका नंबर है वो है 140, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पे बोला है सॉल्व फॉर x। आपको ये पूरे को सॉल्व करना है और इसके अंदर से आपको x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले अलग से सॉल्व करता हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड को करूँगा तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 17 माइनस 3x, ठीक है, अपॉन 5 माइनस, ठीक है, अभी अपॉन में 5 नहीं आएगा, पहले 3 इंटू 17 माइनस 3x माइनस 5, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, 5 3 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 5 माइनस 6x प्लस 7x प्लस 14 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो 17 3 51 माइनस 3 3 9x माइनस 5 4 20x माइनस प्लस माइनस 5 2 10 अपॉन आपको मिल जाएगा 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 5 15 माइनस 6 3 18x, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये ऐड कर दोगे तो प्लस 7x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3। आप ये 3 और 15 को तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, 3 5 15 होता है। अब ये होगा 51 माइनस 10 यानी कि 41 माइनस 9 माइनस 20 माइनस 29x अपॉन में यहाँ पे 5 है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है माइनस 18 प्लस 7, तो माइनस 18 प्लस 7 माइनस 11, 15 प्लस 14 तो ये होगा 29, 15 प्लस 14 29 माइनस 18 प्लस 7 माइनस 11x, ठीक है। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 41 माइनस 29x इज़ इक्वल टू, ये 5 इधर आएगा तो 5 इंटू 29 माइनस 11x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको मिलेगा 41, अलग कर देते हैं, माइनस 29x इज़ इक्वल टू 29 5 तो 30 5 150 होता है, उसमें से 5 माइनस हो जाएगा तो 145 माइनस 11 5 55x, ठीक है। ये उधर जाके प्लस होगा, ये इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 55x इधर गया तो 55x माइनस 29x इज़ इक्वल टू, ये 145 तो था पहले से और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 41। 55 में से 29 माइनस करोगे तो 39 49 और 6 तो 26x आपको मिलेगा, 26x इज़ इक्वल टू 145 माइनस 41 ये आएगा 104, तो x इज़ इक्वल टू 104 बाई 26, 13 2 26 और 13 8 ठीक है, 2 4 8, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी?
तो सॉल्व करने पे फाइनली हमको x की वैल्यू मिल गई है। कितनी है बेटा? x की वैल्यू 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है? इन अ पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन के अंदर द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा बेटा? n होगा, 2 किससे? नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है? 2/5। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 2/n माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, 2 1 जार 2, तो आपको मिलेगा n माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली n इज इक्वल टू 8। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपको क्या दिया है बेटा? फाइंड द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ऐसा फ्रैक्शन जो खुद से मल्टीप्लाई होने पे क्या दे? 67.24। तो अब ये फ्रैक्शन है, तो हम इस फ्रैक्शन को ले लेते हैं x/y। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? खुद से, तो इंटू x/y क्या दे रहा है आंसर में? 67.24। मैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे टेंस हंड्रेड्स, तो 6724 बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 100 का तो डायरेक्टली रूट पता है, 6724 का नहीं पता है, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 6724 का अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये होगा 2 3 जार 6, अगेन 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, वापस 2 से करता हूँ तो ये होगा 2 1 जार 2, 1 3, 2 6 जार 12, 1 6, तो 2 8 जार 16 एंड 1। ठीक है, अब ये 1681 जो है वो एक प्राइम नंबर 41 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्क्वायर है वो किसका आया? 41 इंटू 2, यानी कि 41 इंटू 2 कितना हुआ बेटा? 82। ठीक है, 41 इंटू 2 हुआ 82। तो अगर आप दोनों साइड रूट निकालते हो तो इसका रूट x/y होगा और इसका रूट, ये किसका स्क्वायर है? 82 का, तो 82 और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो आपको क्या मिलेगा? x/y इक्वल टू 82/10। ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो आपको जो फ्रैक्शन है x/y वो कितना मिल गया? 41/5। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ, आपको इसका क्यूब रूट एंड इसके क्यूब रूट दोनों के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा कि ये किसके क्यूब रूट्स है। ठीक है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो या फिर आप एस्टिमेशन मेथड से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, या अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही देख लेते हैं। तो कौन सा नंबर दिया है? आपको दिया है 35937। ठीक है, तो पहले 3 से कट करते हैं, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 9, तो 3 9 जार 27, 2 3, तो 3 7 जार 21 एंड 3 9 जार 27। अगेन 3 से कट करते हैं, तो 3 3 जार 9, 2 9, तो 3 9 जार 27, 2 7, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9। अगेन 3 से कट करता हूँ, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। अब आपको पता होगा ये आपका नॉन क्यूब है 1331, ये 11 का होता है, 11 121 11 11 एंड 11 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपका जो क्यूब है वो होगा 33 का क्यूब इज इक्वल टू 35937। ठीक है, सेकेंड नंबर कौन सा है बेटा? सेकेंड नंबर है 19683। ठीक है, 19683, तो यहाँ पे भी 999, तो 3 से ही स्टार्ट करता हूँ, 3 8 जार, या तो सॉरी 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 1 6, तो 3 5 ज़ा 15, 1 8, तो 3 6 ज़ा 18। ठीक है,
और 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 26, तो 3 8 ज़ा 24, और 2 1, तो 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से, तो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27, अगेन 729 आपका नोन क्यूब है, तो 9 81 9 9 और 9 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 9 3 ज़ा 27, तो 27 का क्यूब इज इक्वल टू 19683। आपको बोला है क्यूब रूट्स ऑफ, तो इसका क्यूब रूट कौन आएगा बेटा 33, एंड इसका क्यूब रूट कौन आएगा 27, उसका डिफरेंस तो माइनस कर दिया, तो आपका क्या आंसर आ रहा है बेटा, आपका आंसर आ रहा है 6। तो उनके क्यूब रूट्स का बीच का डिफरेंस हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बोला है, द प्राइस ऑफ 50 पेन्स इज 251/4 एंड द प्राइस ऑफ 100 पेंसिल्स इज ₹225 1/4। तो टोटल प्राइस आपको किसकी ढूंढनी है बेटा, 5 पेन्स की और 12 पेंसिल्स की, ठीक है। तो अभी आपको बोला है 50 पेन्स का कितना कॉस्ट है, तो 50 पेन का कॉस्ट है 251/4, ठीक है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में करें तो 50 पेन का जो कॉस्ट है 25 4 ज़ा 100, तो 1000 और 1 1001/4। तो आपके एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो आपके एक पेन का कॉस्ट होगा 1001/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1/50। तो ये होगा 1001/5 4 ज़ा 20, ठीक है, तो ये होगा 200। ये कितना कॉस्ट है बेटा, एक पेन का कॉस्ट है, वन पेन का कितना कॉस्टिंग आ रहा है 1001/200। सिमिलरली पेंसिल का ढूंढ लेते हैं, तो पेंसिल का कितना बोला है 100 पेंसिल्स, 100 पेंसिल्स का कितना कॉस्ट बोला है बेटा मिक्स फ्रैक्शन में 225/1/4, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को वापस प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो ये होगा इम्प्रॉपर में, तो 100 पेंसिल्स का ये हो जाएगा 225 × 4, तो 225 का डबल 450 और 450 का डबल 900, तो ये होगा 900 और 1 901/4, ठीक है। ये 100 पेंसिल का कॉस्टिंग है, तो 1 पेंसिल का कितना होगा, तो 1 पेंसिल का हो जाएगा, ये होगा 901/4 डिवाइड बाय 100 यानी मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो ये होगा 901/400, ठीक है। अब आपको किसका कॉस्टिंग बोला है बेटा, 5 पेन एंड 12 पेंसिल, आपको कॉस्टिंग बोला है 12 पेंसिल का, तो 5 पेन और प्लस 12 पेंसिल, ठीक है। तो ये होगा 5 × 1 पेन का कितना कॉस्टिंग है 1001/200 प्लस 12 × 1 पेंसिल का कितना कॉस्टिंग है 901 कितना है 400 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 1001 × 5 ये होगा 5005/200 और प्लस यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं बेस को 200 करने के लिए 2 से कट आउट कर देते, तो 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 0 0, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो नीचे तो 200 आ गया, ऊपर कितना आएगा बेटा 901 × 6, तो 901 × 6 आप करोगे तो 6 1 ज़ा 6 0 और 9 6 ज़ा होगा 54, तो ये आपका होगा 5406, ठीक है। तो ये आया 5406 और इधर आया 5005, दोनों में अपॉन 200 है, तो अपॉन में तो 200 ही रहने देता हूँ। अब ऊपर का अगर आप देखोगे तो एडिशन 5005 और यहाँ पे 5406, तो ये आ रहा है 5 + 6 11 0 0 1 4 और 5 + 5 10, तो ये आपका आ रहा है 10411/200। तो ये कितना कॉस्टिंग है बेटा, ये आपका 5 पेन और 12 पेंसिल का कॉस्टिंग है, ठीक है।
ठीक है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो मैं यहाँ पे x प्लस 1 को इसको इस साइड ले जाता हूँ, तो आपको मिलेगा x प्लस 1 बाई 4 प्लस x प्लस 1 बाई 3 माइनस x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये पूरे में से मैं x प्लस 1 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर आपको मिलेगा 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3 4 ज़ा 12 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो आपको मिलेगा x प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 7 बाई 12 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 7 2 ज़ार 14 माइनस 12 1 ज़ार 12 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 इंटू आपको मिलेगा 2 बाई 24 इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 12 ज़ा, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू है वो मिलेगी देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 11 मिलेगी। आपको x 11 मिला, बट आपको किसकी वैल्यू पूछी है, x माइनस 1, तो ये हो जाएगी 11 माइनस 1 जो आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्या है फाइनल आंसर, फाइनल आंसर है x इक्वल टू 10। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आपको बोला है द मेजर द एंगल्स ऑफ अ हेप्टागन, आपको हेप्टागन्स के एंगल दिए हुए सातों सात, और आपको बोला है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल ढूंढना है। तो आपको पता होगा हेप्टागन यानी कि 7 साइड्स होती है, तो सातों 7 साइड का सम कितना होगा, तो आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स के जो सम की जो प्रॉपर्टी है वो है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास कितनी साइड्स है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास 7 साइड्स है, तो 7 का सम होगा 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 माइनस 2 5 इंटू 180, 18 5 ज़ा 90। तो आपके जो सातों 7 एंगल्स होंगे, 7 एंगल्स, उनका सम कितना होगा 900। तो आपको सिर्फ उन सभी सातों एंगल्स को ऐड करने हैं। कौन से 7 एंगल्स है बेटा आपके पास है x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 20 प्लस x प्लस 20 प्लस 3x माइनस 40 प्लस x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 20 और लास्ट में होगा प्लस x प्लस 40। अगर आप पहले x का देखोगे तो ये होगा x 2x 3x और x 4x और 3 7x 7x और x 8x 8 प्लस 2 10 और 1 11x। तो यहाँ पे मिला आपको 11x। अब आप नंबर्स को देखो तो माइनस 10 प्लस 20, तो 20 में से 10 गया 10, 10 प्लस 20, तो 10 के अंदर 20 ऐड हुआ, तो 10 के अंदर 20 ऐड हुआ तो 30, 30 माइनस 40, तो माइनस 10 प्लस 10 अगेन 0 हो गया। अब ये माइनस 20 आया और प्लस 40 आया, तो 40 माइनस 20 20। और इन सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना बोला है बेटा आपको 900 हो जाएगा। इसको यहाँ पे ले जाओ तो माइनस होगा, तो 11x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 900 माइनस 20 880, 11 8 ज़ा 88 और 0। तो आपको x आपका जो मिला वो कितना है 80 डिग्री मिला है। अब आपको यहाँ पे सब जगह पे x की वैल्यू रख के देखना है कौन से एंगल की क्या वैल्यू है। तो 80 माइनस 10 कितना होगा 70। ठीक है, यहाँ पे देखो 82 ज़ा 160 प्लस 20 180। ठीक है, नेक्स्ट 80 प्लस 20 100। नेक्स्ट देखते हैं 80 इंटू 3
18 8 3 ज़ा 24, 240 में से 40 गया तो 200, फिर 80 प्लस 10 90, ठीक है। 2 इंटू 80, 80 2 ज़ा 160 माइनस 20 140, और 80 प्लस 40 तो ये होगा 120 डिग्री। अब आपको क्या पूछा है बेटा, स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट देखो, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो अगर आप देखोगे ये सारे नंबर्स तो स्मॉलेस्ट है 70 डिग्री। चलो लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ा वाला एंगल। तो अगर आप सबसे बड़ा वाला एंगल देखोगे तो ये मिल रहा है आपको, तो लार्जेस्ट कितना मिल रहा है बेटा 200 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल है आपका 70 डिग्री और लार्जेस्ट है आपका 200 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा और रूट निकालूंगा और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे होगा 10, 100,000, 10,000, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा अंडर रूट 2304 बाई 10,000, ठीक है, प्लस यहाँ पे मिलेगा 1764 बाई सेम 10,000 अपॉन सेम नंबर से बेटा अंडर रूट 2304 बाई 10,000 माइनस अंडर रूट 1764 बाई 10,000, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो पहले आपको 2304 का निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो पहले 2 1 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा, अगेन 2 5 ज़ा 10 1 5, तो 7 ज़ा 14 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 से हो रहा है 2 2 ज़ा 4 1 7 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से हो रहा है 1 44। ये अब आपको पता है 12 का स्क्वायर है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये होगा 12 2 ज़ा 24, ये 2 बार 12 आया तो 12, 2 बार 2 आया 24 और 2 बार 2 आया 48। तो ठीक है, तो ये जो है 2304 ये क्या है बेटा 48 का स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला फाइंड करते हैं 1764, ठीक है। तो ये 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा। अब आपको पता है अगेन 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये होगा 21 2 ज़ा 42, तो आपको मिलेगा 1764 जो है वो किसका स्क्वायर है 21 2 ज़ा 42 का। तो मैं यहाँ पे वही डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। रूट निकालता हूँ तो x होगा ऊपर 4304 48 का स्क्वायर है तो 48 10,100 का है, प्लस ये 42 का है, ये अगेन 100 का है, अपॉन ये अगेन 48 बाई 100 और माइनस 42 बाई 100। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा 48 प्लस 42 90 बाई 100 और नीचे मिल जाएगा 48 माइनस 42 6 बाई 100। ये और ये कट आपको मिला 90 बाई 6, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, तो आपको x की जो फाइनल वैल्यू है वो मिल जाती है x इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।